हॅलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आर के सायन्स अकॅडमीमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. तर आपण जी फिजिक्स 12th स्टँडर्ड महाराष्ट्र बोर्डची जी सिरीज आपण चालू केलेली आहे. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर which we have seen the second condition of vertical circular motion. Okay, so now we are going to learn the next subtopic of the first chapter, that is moment of inertia. Okay, so in moment of inertia we are going to learn about the parallel axis theorem, then perpendicular axis theorem, and the expressions for various conditions, that is ring, then disk, okay, and much more. Okay, so in moment of inertia, first of all we must know what is mean by moment of inertia. Okay, in simple definition or in simple way we can say moment. What is mean by moment? Moment is the just it is the rotation. Okay, rotation in circular direction. Okay, here we have the two things, that is moment and energy. Okay, so if we are going to take the simple meaning of moment of inertia. Okay, moment of inertia is the okay moment of inertia is the resistance of a body against the circular motion or motion. Okay, म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अशी गोष्ट आहे, अशी टर्म्स आहे की जी एखाद्या सर्क्युलर किंवा सर्क्युलर मोशनमध्ये मूव्ह होणाऱ्या बॉडीच्या मोमेंटला रेजिस्टन्स करणारी कन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ एनर्जी. ओके, सो इन फ्रॉम 11th standard we are learning the terms, that is angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. Okay, so here in these three words, that is angular acceleration, angular displacement, okay, angular velocity. Okay, here in these three the angular word is here. Okay, so what is mean by angular? So I think in first lecture I have mentioned what is mean by angular, what is mean by linear. Okay, so I am going to tell you here in short. Angular means it is the just angular means it's the word angular is came from angle. Okay, angle. So angle we represent with theta. Okay, so angle means it is the inclination with the vertical position or horizontal position, whatever it may be. Okay, just it is in the position other than vertical and horizontal. Okay, so that is angle. Okay, so angular means what? Then if we are going to learn the angle. Okay, so angular means the rotation. Okay, so rotation, circular motion, that's why we are using here the angular word. Okay, so angular, then we have learned displacement. So what is angular displacement? Okay, just it is a in a circular motion displacement. Then velocity, so velocity is angular here. The angular acceleration, what is acceleration and what is angular acceleration, these are the things which we have already learned in our last standard. So these are the terms which we must revise once only. Okay, so these are the things which in linear position as well as in angular position. In angular the only word angular added, but the meaning of these three two angular and plane linear, it changes. Okay, so as mentioned, angular displacement is replaced with displacement only. Then angular velocity is replaced with the velocity, and the angular acceleration is replaced with the acceleration only. Okay, so in this way, the torque will be analogous or replaced, or it's analogous or similar to the force. Okay. Okay, what is torque and what is force? These are the things that is similar, but they are used in particular way. Okay, torque and force. Okay, these are the simple basic terms which we have to keep in mind. Okay, so while learning moment of inertia, we must know. So
So we must know, and we must go for next what we have to learn and what they have given us. Okay, so just for angular or moment of inertia, just they have given us the example of door. Okay, so in our home we have the door or window. Okay, so to that door or window we have the, if you see with microanalysis, then you have the door with, door is fitted or revolves around a some wall, or it has a fixed position, so that is fixed with the hinge. Okay, so due to this hinge the doors revolve. So door, so consider this is your wall, to that wall you have a door. So consider this, and here this you have the hinges. Okay, so about this hinge the door will be rotated or move or open and close. Okay, so these are the circular motions. Okay, and these are the examples they which they given you to study for your moment of inertia as just for basic concept clearation. Okay, so now moving towards the main course of the moment of inertia. Okay, here they have to given us a diagram for understanding the moment of inertia. Okay, so let's imagine this is a body that given us for our concept clearation. Okay, so this is the body of on a regular shape. Okay, so we know that it is a solid body. Okay, the body, solid body always, and we have already seen the properties of material. Okay, the material, always any material is consists of number of small particles, and we also know from chemistry the molecules. Okay, molecules, atom, and from that the material form. And okay, so these are the micro studies. Okay, so if they are given us the one component here. Okay, so that body is made of number of small particles. Okay, these are the small particles which we can't see by our naked eyes, but these are if you have to see in the micro analysis, then you have to go for microscope. Okay, then you will see the एकदम माइक्रो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से बनी है. ठीक है, तो हम इसको स्टडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी के लिए हम इसको एनालिसिस करने के लिए अभी हम सब मास कंसिडर किए हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे यमोन मास दिया है. ठीक है, ये जो है अभी हमने ये इसका एक्सिस ये कंसिडर किया है. ठीक है, तो जो ये यमोन पार्टिकल है ये R1 डिस्टेंस पे ये यमोन पार्टिकल है. तो ये M2 है, ये R2 पे है, इसका डिस्टेंस R2 डिस्टेंस है फ्रॉम दी ये वर्टिकल एक्सिस है. ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लाखों करोड़ों हजारों पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो हम उसको एम एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे. सो this is the structure which we are going to learn for the basic concept of moment of inertia. Okay, so अभी ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा की इसके प्लेन में है. ठीक है, ठीक है, तो जब हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस है और उसके ये अराउंड पूरा हमको अभी ये पढ़ना है. ठीक है, सो तो अभी अभी जो हमने ये पहले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. सो ये सब जो पार्टिकल्स है m1 m2 m3 वॉट एवर में भी, तो उन सभी को हम अगर रिवॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सिस के, यहाँ पे जो ऊपर एक एक्सिस दिया है इमेजिनरी एक्सिस, उसको हम अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के अबाउट रोटेट होंगे. ठीक है, तो उनको वेलोसिटी एक फर्स्ट पार्टिकल जो होगा m1 का उसको v1 वेलोसिटी, जो m2 का होगा उसको v2 वेलोसिटी रहेगी.
तो हमको पता है, हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है आर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहेंगी। ओके, सो अभी हमने जब हम अभी ये रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो जब ये रिवॉल्व हो रहे हैं तो इनको काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वो है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब ये v1 की जगह पे हम उसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या है वो रखेंगे, वो क्या है आर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इसको मॉडिफाइड करने के बाद हाफ एम वन आर वन ओमेगा वन स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, सो तो अभी ये हो गया, ये जो काइनेटिक एनर्जी हम निकल एक पर्टिकुलर मास जो वो बॉडी में ऑलरेडी कंक्लूड है। ओके, तो ऐसे मास कितने हैं उसमें, बहुत सारे मास है। जब भी हम अभी हम आपने पहले लिखे अब अभी दिखा कि बहुत सारे मास है, एम वन है, एम टू है, एम एन, ये लाखों करोड़ों मास है। ठीक है, तो टोटल का जब हम काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, तो ये सभी काइनेटिक एनर्जी की हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सभी मास की काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जब हम एडिशन करेंगे, तब हमको वो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो तो जब हम ये काइनेटिक एनर्जी का ऐड करेंगे तब हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। तो अभी ये ऐड करके उन्होंने बताया हाफ एम वन आर वन स्क्वेयर, ये जो है पहला एक मास के लिए, दूसरा मास के लिए, तो ऐसे नंबर ऑफ मासेस है। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अभी अभी इन्होंने क्या किया कि ये जो इसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे ओमेगा कॉमन निकाला, क्योंकि ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, बाकी उसमें मास और ये जो आर है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि मास सबका अलग अलग हो सकता है, कोई 1 ग्राम का हो सकता है, कोई 1 किलो का हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मास अलग अलग है। ओके, देन आर रेडियस सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो जो अपना एक इमेजिनरी एक्सिस है उसके अराउंड वो उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो कोई नज़दीक है कोई दूर है। ठीक है, उसके लिए आर भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी एम आर, ठीक है, तो ये जो अभी उन्होंने ओमेगा, ये जो क्या किया उन्होंने कॉमन निकाले। ठीक है, अभी एम आर जो है ना, यही तो है एम आर जो है, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज जब हम पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस जो देखेंगे उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि आई एम आर ओमेगा कैसा है। ठीक है, वो पूर्णी के बाद वो कर थ्योरम प्रूव करने के बाद वो डेफिनेशन पता चल जाएगी कि क्यों आई एम आर। ठीक है, तो ये एम आर जो है, ये एम आर की जगह पे हमने आई रख दिया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया अपना, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी अलग हो गया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग हो गया। जैसे हमने वेलोसिटी देखा और ये देखा क्या, वेलोसिटी जो और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी ये रोटेशन में, ये तो है कि रोटेशनल एनर्जी ये रोटेशन में। ठीक है, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया। ओके, so I think you don't have any confusion up to this. Okay, if you have any confusion then you can comment me, okay, and reply. Okay, so I will try to uh, give your answers in the next lecture. So okay, so you don't have to take any tension and just do your study with fairness. Okay, now friends, let's so अभी अभी ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अभी 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 मैंने आपको यही बता था कि जैसा वेलोसिटी है उसको एनालॉगस क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को एनालॉगस क्या है, तो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रोटेशनल और लीनियर में चल रहा है। ठीक है, लीनियर मतलब ये ट्रांसलेशनल, ये ट्रांसलेशनल वर्ड लीनियर। ओके, ये ट्रांसलेशनल और लीनियर क्या हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, और ये जो एंगुलर है
ये रोटेशन में होता है, ये ट्रांसलेशन और लीनियर ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। ये एक लेयर हो गया। अभी जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये रोटेशन में है, उसका एनएल रिवर्स जो है हाफ एम वी स्क्वायर ये ट्रांसलेशन या लीनियर में है, ओके। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ओके। सो चलो, तो अभी आगे चलते हैं। सो अभी अभी एक जो है, अभी हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो नीचे फॉर्मूला देखा, एम आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ओके। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो तो अभी इसमें जो हम लोगों ने देखा आई इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसमें क्या क्या टर्म्स है, तो उसमें क्या है, एम है, ठीक है, एम है और आर है, ठीक है। तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास और रेडियस पे डिपेंड है। ये दो पॉइंट तो आपको क्लियर होना ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर इज डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस, ओके। सो तो ये जो दिया है अपने को ऊपर, क्या दिया है कि ये तुमको ध्यान में ये रखना है और ये लिखना भी है, ठीक है। और ये तुमको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से टर्म्स पे और कौन से क्वांटिटीज पे डिपेंड्स है, ठीक है। तो वो जो दिया है वही तो यहाँ पे दिया है उन्होंने कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, कहाँ पे डिपेंड है वो, एक तो मासेस, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मासेस, मतलब आर, आर जो है ना, तो वो एक्सिस से कितना कौन सी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन इस पे वो डिपेंड है, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। सो ठीक है, तो मूव करते हैं आगे। सो होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो बॉडी है नंबर ऑफ मासेस से ये बना हुआ है, ठीक है। तो एम आर ओमेगा सॉरी आई का हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ओके। तो जब हम इसको माइक्रो एनालिसिस करते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक ही मास, ओके, अगर एक ही मास कंसिडर करते हैं तो उसके लिए एनालिसिस हम कैसे करें, ये तो एम आर ये जो हो गया ये पूरे होल बॉडी का हो गया। अगर हम एक छोटा सा मास उसमें का कंसिडर करके उसका एनालिसिस करते हैं तो वो क्या होगा, ये मास जो डीएम जो उस बॉडी का एक पोर्शन है, इसके लिए हमने उसका डीएम कंसिडर किया, और ये जो आर है इसका डिस्टेंस हो गया एक्सिस से। सो ऐसे बहुत सारे मास है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मास वो बॉडी में इंक्लूड है। इसीलिए हम जब पूरा बॉडी का विचार करेंगे तो उसमें हमको वो पूरे मासेस का विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन का सिंबल करते हैं, यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सब कुछ मासेस हमको कंसिडर करना पड़ता है, वो उसका समीशन और ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो पूरे का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी हम उन सभी को कलेक्ट करते हैं, उसी को हम इंटीग्रेशन करते हैं। जो डेरिवेटिव होता है उसके पूरा अपोजिट होता है, वो डिफरेंशिएट कर देता है, सबको अलग 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 बना देता है, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन एंड वाई the symbol here they used and why mentioned. So I have cleared you these things, okay. So now move towards the next part, okay. तो अभी क्या दिया है इन्होंने, एक एग्जांपल दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग दिया है इन्होंने, ओके। सो रिंग के लिए हमको जाना है अभी। सो सेम सेम कंसेप्ट, हमको एक रिंग लेना है, ठीक है। वो रिंग वो रिंग जो है वो रिंग ये यहाँ पे उन्होंने रिंग दिया, ठीक है, ये रिंग। अभी ये रिंग का इमेजिनरी एक एक्सिस हमको कंसिडर करना है ऐसा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है इसको, ठीक है। अब ये रिंग है सर्कुलर, तो इसको एक रेडियस होगा, ये सेंटर से, ये सेंटर में से, ठीक है, ये रेडियस रहेगा, ठीक है। ये रिंग हमने कंसिडर कर लिया।
सो फ्रेंड्स, जब अब हम ये देख रहे हैं, ये जो रिंग है, ठीक है, इसका जो एंटायर मास है वो तो मतलब उसके पेरीफेरी, मतलब जो एक्सिस हम लोगों ने कंसिडर किया है उसके रेडियस जितना है, उसके वो रेडियस के आजू बाजू में उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम जो वो रिंग कंसिडर करा है वो उसका मास यम हम लोगों ने किया कंसिडर, तो उसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला में देखा, तो वो हो गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द क्लियर कट फॉर्मूला, ये अपने को माइंड में रखना है। और ये इस पे फॉर्मूला तुमको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वो मास देंगे तुमको, रेडियस देंगे, ये फॉर्मूला ध्यान में रख के तुमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो ये चैप्टर के एंड में दिया है, वो सबके फॉर्मूले तुमको एज इट इज ये तुमको पार्ट ध्यान में रखना है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमको उससे हेल्प होगी। ओके ओके, now after seeing the moment of inertia for ring, now we are going to learn the moment of inertia for disk. Okay, so it is said to be यूनिफॉर्म डिस्क कब बोल सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स मास पर यूनिट एरिया, ओके, मास पर यूनिट एरिया एंड कंपोजिशन इज सेम थ्रोट में, मतलब क्या है कि जो मतलब ये स्टेटमेंट का ये है कि हम वो जो डिस्क है उसका कोई भी पोर्शन अगर हम कट करिए तो उसमें क्या रहेगा कि जितना भी एरिया है तो उसका मास वो एरिया पे उतना ही होना चाहिए जितना अदर पार्ट का है कट करने के बाद, ठीक है। तो उसका मतलब है कि यूनिफॉर्म। ओके, तो अगर डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एरिया। ओके, ये लॉन्ग टर्म अपने को ये तुमको ध्यान में रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। ये अभी तो तुमका स्टार्ट हो गया है, ये लाइफ टाइम तुमको ध्यान में रखना है, ये चेंज नहीं है। सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ओके, नो एरिया है, अभी एरिया जो मास तो उसका डायरेक्टली मास तो प्रॉब्लम में दिया वाला होता है, ठीक है। लेकिन एरिया जो होता है, ये एरिया जो है ये हर थिंग्स के लिए, हर डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी है उसके लिए एरिया चेंज होता है। मतलब ट्रायंगल के लिए एरिया अलग रहेगा, स्क्वायर के लिए अलग रहेगा, रेक्टेंगुलर के लिए अलग रहेगा, सर्कल के लिए अलग रहेगा। ओके, सो अगर ये डिस्क है तो डिस्क क्या होता है, अभी ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या है अपने को पता है, पाई बाय फोर डी स्क्वेयर, d means this is the diameter of that circle। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस जो एक्सिस के दोनों साइड का रेडियस का एडिशन करने के बाद d इज इक्वल टू 2r। तो अभी जो ये जो इक्वेशन इन्होंने बनाया है पाई एम बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, ये जो ऊपर का डेंसिटी वाला इक्वेशन था एम बाय ए, तो एम एज इट इज यहाँ पे रख दिया। ये जो है ये के जगह पे उन्होंने ये इक्वेशन यूज किया, पाई बाय फोर डी स्क्वेयर। ओके, तो डी की जगह पे 2r रखे, तो यहाँ पे ये आर वो कैंसिल हो गए, तो फाइनली ये एम बाई पाई आर स्क्वेयर ये इक्वेशन सिग्मा के लिए बन जाता है जो डेंसिटी का है। ओके, सो तो अभी अभी ये जो डिस्क है, ठीक है, अभी ये हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो ये जो डिस्क है, सो नंबरली डिस्क कंसिस्ट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, हम उसको कट करेंगे तो ये जो, ठीक है, नंबर ऑफ जो डिस्क, ठीक है, ये डिस्क का हम लोगों ने एक एक रिंग ही कंसिडर करो कि हमने ये इतना ही इसका एनालिसिस करने के लिए हमने ये यूज किया, ठीक है। तो ये स्मॉल है और ये ऐसे नंबर ऑफ रिंग्स का बनाकर एक डिस्क बना है, ठीक है, ये पूरा डिस्क, ठीक है। तो हम जब ये रिंग यूज कर रहे हैं, ये तो स्मॉल है, मतलब जो उसमें से हम लोगों ने उसको निकाला है, ठीक है। तो जब उसका हम अभी ये जो आर है ये पूरी डिस्क का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो जब हम एक रिंग यूज कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, ये डी आर होगा, ठीक है। तो इसकी एक जो थिकनेस होगी वो थिकनेस भी स्मॉल डी में ही रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट इन रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स
So we are just here is replacing the radius with the k. Okay, r is replaced by k. जो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल जो थिंग्स होते हैं, प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें हमको दिक्कत आती है। शेप जो है ना, कोई भी शेप का होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ये डेफिनेट कोई मतलब एक ही साइज का शेप का नहीं होता, वो अलग अलग होता है। तो जब हमको वो डिराइव करने में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकली निकालने में दिक्कत आती है वो शेप की वजह से, क्योंकि वो न तो ट्रायंगल होता है, न तो रेक्टेंगल होता है, न तो कोई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये थिंग्स के लिए हम वो छोड़ के वो उसका हम उसको रेडियस ऑफ वायरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। जो अब हमने यही देखा था कि जो आर होता है वो रेडियस होता है, तो उसके बदले में हम के यूज करते हैं, ये जो इरेगुलर शेप है। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने तुमको बताया ना कि जो आर के बदले में हम के यूज कर रहे हैं, अगर उसका ही यूज करके तो कैसा आएगा, आई इज इक्वल टू एम विल बी एज इट इज। ओके, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो आर की जगह पे के यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई इज इक्वल टू। ठीक है, सो लार्जर द वैल्यू ऑफ के हार्दर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस। ये तो वही है, मतलब जब लार्जर ये डिस्टेंस रहेगा तो के भी लार्जर ही रहेगा, वही उनको यहाँ से बताना है। ठीक है, सो नेक्स्ट we are going to we have the, so as already I have mentioned parallel axis and perpendicular axis. तर मित्रांनो, तर आपण इथे थांबतोय आज। आपण जे कन्सेप्ट पाहिले मोमेंट ऑफ इनर्शियाची, त्याच्यामध्ये आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय हे पाहिलं। त्याच्यानंतर आपण एक रिंगसाठी आणि डिस्कसाठी डेरिवेशन काढलं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्यांच्यासाठी कसं आहे काय आहे। ठीक आहे, तर आता नेक्स्ट जो आहे, मी तुम्हाला जसं कमेंट केलं की पॅरलल ॲक्सिस आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस हे जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत, ते कसं डिराईव्ह करायचं वगैरे। ठीक आहे, त्याचे डेरिवेशन आहे। सो तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे। बाकी जे थिओरिटिकल पेरेशन आहे ते तुम्ही वाचायचं, तुम्हाला समजून जाईल। ठीक आहे, काय अडचण आली तर मला कमेंट करायचं आहे। ठीक आहे, सो मला तुम्हाला आता सांगायचं की मित्रांनो, आता तुमचा अभ्यास ते तुम्ही थांबवायचं नाही, हे कंटिन्यू चालू ठेवायचं तुम्हाला। ओके, काय अडचण आली मला विचारत चला। आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, सुरुवातीला ते सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। ठीक आहे, व्हिडिओ पाहिला त्याला लाईक करा, जेणेकरून आम्हाला नेक्स्ट लेक्चर बनवताना तुम्ही लाईक केलं म्हणजे आम्हाला अजून आमचा कॉन्फिडन्स बूस्ट होतो आणि अजून आम्ही चांगले प्रयत्न करू तुम्हाला नॉलेज डिलिव्हर करण्यासाठी। ठीक आहे, त्याला लाईक्स करा। ठीक आहे, जे तुमच्या भावना आहेत त्या आम्हाला त्याच्यामधून समजून जातील लाईक आणि डिसलाईकमध्ये। ठीक आहे, तर अभ्यास चालू ठेवा आणि सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांना शेअर करा, फेसबुकवर शेअर करा, व्हॉट्सअपवर शेअर करा आणि अभ्यास चालू ठेवा। ठीक आहे, तर मित्रांनो थांबू इथेच, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये भेटूया। ठीक आहे, सो आज पुरतं एवढंच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।